Hello friends, I'm CS Jaspreet. Welcome back to my channel. I hope you all are good and preparing for your exams. Exams आ गए CA के, CS के, CMA के and all the students are gearing up with their preparation. So all the best from my end. And I am here with another work study planning tips Wednesday video and the video is going to be really useful अगर आपके भी exams हैं मई में, जून में या जुलाई में. Because today I will tell you 5 strategies for the exam day. Yes, अब जितनी preparation करनी थी, जितनी revision करनी थी, I hope आपने सब कुछ कर लिया है. Now we are on the exam day. तो exactly exam वाले दिन आपकी क्या strategy होनी चाहिए, that I will be telling you. But before that, if you're new to my channel, hi, I'm Jaspreet. I post videos for CA, CS, CMA members as well as students. I post a video on Monday, Wednesday and Saturday and lots of shorts. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड दैट इज़ रियली डिसहार्टनिंग ऑन माई पार्ट दैट आई कुड सी दैट मोस्ट ऑफ यू आर व्यूइंग माई वीडियोज़ बट नॉट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. लेट मी टेल यू इट्स totally free of cost, so please subscribe to my channel and hit the bell icon right next to it so that whenever I post any video you get notified. So without wasting much of your time, I'll start with the first tip, which is get up early. हाँ जी, so चाहे आपका पेपर है मॉर्निंग में, चाहे आपका पेपर है दोपहर में, make sure that you are waking up early because I'll tell you one thing. On the exam day, students are very stressed, डर लग रहा होता है, तो it is always advisable that get up and study, right? जितना भी टाइम आप स्टडी में दोगे, that will always be useful. And for me, जो भी चीज़ें मैं सुबह पढ़ती हूँ वो मुझे याद रहती हैं. So make sure that you are making the most of your time. Make sure कि आप जल्दी उठ के पढ़ रहे हो, right? The best thing is if you can sleep early or sleep on time and then you wake up early, that will be very much better for you, especially for the exam day. Exam वाले दिन तो जल्दी उठ के important topics को एक बार revise कर लो and exam में जाके आप भूलोगे नहीं because there are higher chances कि बच्चे डर की वजह से, panic की वजह से, when you see the environment around, it's very difficult to stay calm and control your panic. For that you need strong revision. So get up early, revise all the important topics, important sections, important formulas, or any kind of important percentages, important slabs, anything and everything can be revised on that day. And the best part is that जो भी उस टाइम पे पढ़ोगे वो एग्जाम हॉल में जाके आपको डेफिनेटली याद रहेगा. Second, likewise I told you, revise important topics. एग्ज़ाम वाले दिन बेस्ट चीज़ ये होती है कि फटाफट सुबह उठ के एक बार सारे important topics को नज़रों के सामने से ले आओ so that आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके कंफर्मेशन हो जाए. इट्स वेरी सिंपल कि डर की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें ऐसा लगता है हमने सब कुछ भूल गए, राइट, या एवरीथिंग गॉट ब्लैंक. सो द बेस्ट पार्ट इज दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, just referring to those teeny tiny percentages or just teeny tiny formulas or concepts will definitely help you clear the exams. So कोशिश करो जो बिल्कुल important topics हैं वो जो definitely I will expect कि वो एक दिन पहले आप एक बार देख चुके हो, just एक बार नज़रों के सामने से go through कर दो ताकि एक बार दोबारा एक second या third revision हो जाए. Because like I told you, भूलने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं. तो जब आपने एक बार दोबारा कोई चीज़ देख ली, आपने important sections, important topics, important case laws एक बार go through कर लिए, so there are higher chances कि आपको exam hall में भी वो चीज़ें याद रहेंगी और आप आसानी से नहीं भूलोगे एंड इट विल हेल्प रिटेन इन योर मेमोरी नेचुरली ऑल्सो, राइट. वही जो एक दिन पहले पढ़ा होता है या उससे भी एक दिन पहले पढ़ा होता है उसे भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बजाय कि जो सेम डे पढ़ा है. सो मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग और यू आर रिवाइजिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन द एग्जाम डे एज वेल. थर्ड पॉइंट इज रीच ऑन टाइम. येस, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, आई थिंक जब हमारे बोर्ड्स भी होते थे तब भी हम इस चीज़ को फॉलो करते थे कि अपना एडमिट कार्ड, अपना सामान लेके, या रादर आई विल टेल यू ऑन टाइम अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओ, स्पेशली ऑन डे 1. डे 1 पे क्या होता है, कई बार एग्जाम सेंटर्स डिफरेंट होते हैं, तो प्लीज़ गो एंड फाइंड आउट योर क्लास. और उसके बाद तो प्रॉबेबली क्लास सेम रहती है, बट ऑलवेज काउंट द मार्जिन अबाउट द ट्रैफिक, अबाउट एनीथिंग. इफ एनी रॉन्ग हैपन्स यू रीच द एग्जाम हॉल ऑन टाइम. देखो, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, राइट. 3, 4, 6 महीने से आप पढ़ ही रहे हो, रिवाइज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग ऑल दिस अगर आप वहाँ टाइम पे नहीं पहुंचे. अगर आप एग्जाम हॉल में लेट पहुंचते हो, इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर माइंड कि आप क्लास में एंटर कर रहे हो और सब बैठे हुए हैं और क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, आंसर शीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए. इट रियली डिस्टर्ब्स यू एंड वी रियली डोंट वांट दैट, राइट. अपना पेपर जितना पीस ऑफ माइंड से करोगे उतना ही बेस्ट परफॉर्मेंस
देने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने जो पढ़ लिया आप बस पढ़ लिया, अब जाओ एग्जाम सेंटर ढूंढो और वहाँ जाके अपनी परफॉर्मेंस दो। सो मेक श्योर दैट यू आर रीचिंग योर एग्जाम सेंटर ऑन टाइम। फोर्थ, perform. Likewise, I told you 3 hours are your performance time. अब आपने जितना पढ़ना था और बाकियों ने आपकी जितनी हेल्प करनी थी, जो भी करना था, that is all over. Now it's your show time. You know, ये 3 घंटे could be everything to your future. They can make and break your future. तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन 3 घंटों में आप एकदम फोकस से अपनी परफॉर्मेंस करो। बस ये सोचना है कि मैं अपना बेस्ट दे के इस एग्ज़ाम हॉल से या एग्जाम सेंटर से बाहर निकलूंगा, उसके बाद जो होता है इट्स फाइन, बट फ्रॉम योर एंड इट शुड बी योर बेस्ट, राइट। एक टॉपिक नहीं आता, एक क्वेश्चन नहीं आता, 2 क्वेश्चन नहीं आते, बस हिम्मत नहीं हारनी है और परफॉर्म करते रहना है। एंड समटाइम्स आवर पॉजिटिविटी, आवर विल पावर हेल्प अस परफॉर्म और हम क्लियर कर जाते हैं, राइट। सो मेक श्योर उन 3 घंटों में आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली, रिलीजियसली अपनी परफॉर्मेंस देनी है कि बस कुछ भी करके मुझे अटेम्प्ट जो है वो पास करना है। एंड फिफ्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंस यू गेट आउट ऑफ द एग्जाम सेंटर, डोंट डिस्कस योर एग्जाम अंटिल एंड अनलेस इट्स योर लास्ट एग्जाम। हाँ जी, तो प्लीज़ अपने एग्जाम को अपने फ्रेंड्स के साथ जाके डिस्कस मत करना, वरना आप अगला पेपर भी अपना ख़राब कर दोगे। मोस्टली व्हाट हैपेंस, यू नो, अगर एक पेपर चलो ठीक ठाक सा हो गया, हमें नहीं आता था, यू वेंट आउट, यू डिस्कस्ड विद योर फ्रेंड्स, दे कुड हैव, you know, different kind of reviews. Either they'll say yes the paper was not good, and they will start making sentences like statements like, you know, we'll not attempt the next paper or something, this or that. और on the other hand, अगर उन्होंने बोल दिया कि मुझे तो पेपर आता था, तो आपका तो बाकी के पेपर गए। So it's very very important that stay quiet, don't discuss your paper. Whatever has happened. और अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो डिस्कस करता है पेपर, तो उससे दूर रहो और फटाफट अपने घर पहुंच जाओ, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट डोंट डिस्कस योर एग्जाम। एक बार एग्जाम्स खत्म हो जाए फिर आराम से बैठ के डिस्कस करो, चेक करो आप क्या करके आए हो, बट उस दिन उस टाइम पे पेपर देने के बाद प्लीज़ अपने एग्जाम को डिस्कस मत करो। इट्स अ वेरी वेरी बैड हैबिट एंड इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव, डीमोटिवेटिंग एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑन द अपकमिंग एग्जाम्स एज वेल, जो हम नहीं चाहते, राइट। सो मेक श्योर कि आप पेपर को डिस्कस ना करें, जो हो गया, बस आप अगले पेपर की तरफ मूव करें सो दैट एवरीथिंग गोज वेल। एंड समटाइम्स, you know, if you don't perform that well or whatever you did was very less according to your part, still students get 40 plus, right? Then why to spoil the other exams? Take each exam importantly and seriously and make sure that negative impact of one exam should not go on to the other. So these are my 5 tips जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम डे पे, एंड ये प्योरली मेरी अपनी एक्सपीरियंस के टिप्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। मैंने कहीं पे पढ़े नहीं है, कहीं देखे नहीं है। सो आई एम श्योर आप इन्हें अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली अपने एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे एंड ये अटेम्प्ट क्लियर कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई एंड, माई विशेज, माई प्रेयर्स आर विद यू। एंड दिस वीडियो शाउट आउट गोज टू कोमल बिकॉज उसने लास्ट वीडियो में बोला था मुझे कि शाउट आउट दे दो। लो कोमल, आई हैव गिवन यू द शाउट आउट। आई लव द वे यू पीपल हैव अ राइट ऑन मी। डेफिनेटली यू कैन आस्क फॉर अ शाउट आउट एंड हियर आई एम टू गिव यू द शाउट आउट। आई लव यू सो मच एंड all the subscribers who are so loving, so grateful, they're subscribing to my channel. Thank you so much. And if you want a shout out from me, it's pretty simple. Just subscribe to my channel, like the video and leave a comment below. Maybe in the next video you get a shout out from me. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye.